سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی جانب اہم قدم، صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ مانگ لی۔ خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، حکومتی موقف۔ وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا، ملک کے سربراہ بنا دیے، لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے آپ کے سامنے آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس آج اتنا پیسہ ہے، ان کو خود نہیں پتا کتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، کبھی بچے باہر جا رہے ہیں، بچے باہر بھاگے ہوئے ہیں، کئی بچے کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے باپوں کی چوری کو بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے۔ ماضی میں سیاستدان غلط راستے پر چل کر نشان عبرت بنے، کبھی اسپتال جا رہے ہیں، کبھی باہر بھاگ رہے ہیں۔ باپ کی چوری چھپانے کے لیے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ لوٹ مار کا پیسہ کبھی کسی کے کام نہیں آتا، وزیر اعظم عمران خان۔ یہ تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے کیا ہے، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ ایجنڈا آج بھی این آر او کا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ یہ چاہتے ہیں اور وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی نیب کو بلیک لسٹ کرائیں گے اور نیب کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ آپ کے اوپر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو آپ مقدس گائے نہیں ہیں۔ مافیاز کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ آپ اپنے پبلک آفس کو اس کے دفاع کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نیب قوانین پر اپوزیشن کے مسودے کا ہر حرف این آر او، ریلیف دینے سے انکار پر پی ڈی ایم کو بنایا گیا۔ ترامیم جن لوگوں نے کی سب احتساب بیورو کے ملزم ہیں۔ سلیم مانڈوی والا ذاتی مفاد کے لیے عہدے کا استعمال نہیں کر سکتے، شہزاد اکبر۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک ایک قدم اور آگے، انتظامیہ کی اجازت کے بغیر فضل الرحمان کی قیادت میں مردان میں ریلی، مریم نواز، یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت شیڈیول، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کٹ پتلی حکومت کے مقدمات سے نہیں گھبراتے، کارکن جانتے ہیں انہیں لانگ مارچ کیسے کرنا ہے۔ حکمران سن لیں، اب عوام کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا، بلاول کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ آپ استعفوں کی دھمکی دینا چاہتے ہیں، ضرور دے، لیکن پھر قائم بھی تو رہے نا۔ استعفے اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دینا بھیا۔ یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے؟ یہ گھبراہٹ کیوں ہے؟ یہ رکاوٹ کیوں ہے؟ قیادت کو پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کو پہنچنے چاہیے، اور اگر 31 تاریخ کو 31 دسمبر کو آپ کے استعفے اسپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامہ بند کرے قوم کے ساتھ، یہ ڈرامہ بند کریں اور کہیں کہ استعفے دکھاوے کے اور دینے کے اور۔ سیاسی مخالفین استعفے دینا چاہتے ہیں تو ہچکچاہٹ کیوں؟ لانگ مارچ سے نہیں ڈرتے۔ جے یو ایف اے اس وقت انتشار کا شکار ہے۔ اپوزیشن کے مطالبے پر نیب قوانین میں ترامیم کا مطلب این آر او تھا، حکومت نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ شاہ محمود قریشی۔ حکومت کے خلاف تحریک چلانے والوں کے اپنے خلاف تحریک چل پڑی۔ مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد کا بیان اس کی واضح گواہی۔ پی ڈی ایم میں شامل مفاد پرست ٹولے کی منزلیں جدا ہیں، انہیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ شبلی فراز۔ پی ڈی ایم میں اعلانیہ بغاوت ہو چکی، مولانا کا بھانڈا ان کے اپنوں نے ہی پھوڑ دیا۔ راج کماری، شہزادے اور مولانا کی منفی سیاست ختم، استعفوں کی فلم چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی۔ فردوس عاشق آوان۔ وزیر اعظم کی تقریر پر سیاسی بونوں کے تبصرے حیران کن، بغیر سیاق و سباق کے بیان اصل معنی کھو دیتا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی تنقید، حزب اختلاف احمقوں کا ٹولہ قرار۔ صوبے قوانین بنا سکتے ہیں، مسئلہ صرف وسائل کی تقسیم کا ہے۔ سی سی آئی کو صوبائی قانون مسترد کرنے کا اختیار نہیں۔
असासों के मामले पर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। विफाक वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के 172 अरब दबाए बैठा है सईद गनी। इतनी कमजोर हुकूमत जो कि सिर्फ एमक्यूएम के 6 सीटों से चल रही है, अगर ये इस हुकूमत से कोई बात नहीं मनवा सकते तो फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते। और क्यों नहीं रिजाइन करें, बाहर आए, हुकूमत इनकी बात मानेगी, लेकिन नहीं कर रहे। इस शहर में लावा पकड़ा है, इस शहर में लोग नाराज हैं, हम पर बहुत प्रेशर है कि कब तक टॉक शो करते रहोगे। कमजोर हुकूमत को एमक्यूएम के सिर्फ 6 सीटों का सहारा। ये इस्तीफे दें, बाहर आएं तो हुकूमत इनकी बात मानेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान चला रहे हैं। शहर में लावा पक रहा है, लोग नाराज हैं। मुस्तफा कमाल की मीडिया टॉक। वजीर आजम की पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद आमद पासिंग आउट परेड का मुआयना, चाको चौबंद दस्तों की सलामी, पेशा वराना तरबियत का बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर, प्रॉपर्टी टैक्स में 200% इजाफा कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुराने रेट्स पर टैक्स वसूल करने का हुक्म दे दिया। सीडीए के बजाय मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को टैक्स वसूली की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 84 अफराद जान से गए। अब तक 9,557 अमवात, 2,142 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 4,62,814 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,905 हो गई। हुकूमत का कोरोना वैक्सीन बनाने वाली तमाम कंपनी से राब्ता, फेज 3 ट्रायल्स और नताइज का जायजा लिया जा रहा है। इन मराहिल के बाद वैक्सीन की दस्तयाबी का हतमी फैसला किया जाएगा। NCOC कदम सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर ने वजीर आजम की तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। वजीर आजम ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ दी थी। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते, सदारती रेफरेंस में ऐसा कहा गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, हुकूमत की जानिब से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने पर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया गया है। इस रेफरेंस में हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं कराए जाते, बल्कि इन इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कराया जाता है। लिहाजा सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के तहत हो सकता है। इस रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन अगर होता है तो फिर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें शफाफियत आएगी। सेनेट का जो इलेक्शन है खुफिया बैलेटिंग से अगर होता है जब तो अरकान की जो खरीदो फरोख्त होती है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल होता है और खुफिया वोटिंग की वजह से इलेक्शन के बाद इस इलेक्शन प्रोसेस की शफाफियत में भी सवालात उठ जाते हैं। हुकूमत की जानिब से अब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की आज मंजूरी दी थी और सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहसिन एजाज आपने अपडेट किया। वजीर आजम से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन आमिर सरफराज की मुलाकात हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने आमिर सरफराज को कम उम्री में लॉर्ड का एजाज मिलने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम इमरान खान ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का कहना था कि माजी में सियासतदान गलत रास्ते पर चलकर निशाने इबरत बने, कभी अस्पताल जा रहे हैं तो कभी बाहर भाग रहे हैं। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। लूट मार का पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये दो रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे और बहुत बड़ी एक इज्जत होती है मुल्क का सरबराह बनना, लेकिन जिस रास्ते पर वो निकल गए, आपके सामने आज
वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। और अब जिक्र वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान कौम को तमाम मसाइल से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करने की सिफारिश भी कर दी। शेख रशीद इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म साहब, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका वजीर हूं, अल्लाह आपको बहुत बड़ी इज्जत देगा इंशाअल्लाह ताला। इस इक्तसादी, माशी, सियासी इस सारे मसाइल से आप बाहर कौम को लेकर निकलेंगे। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंशाअल्लाह दुनिया में आपका डंका बजेगा। और ये आपका अहद है कि आपने इस रियासत को मदीना की रियासत बनाना है, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब हम इस मुल्क के तमाम मकतबा फिक्र के उलमा को साथ लेकर ना चलें। सिर्फ एक वजीर आजम साहब सारे मसले छोड़ दें, इनकी तनख्वाह पंजाब पुलिस के बराबर करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन इस्तीफे देना चाहते हैं तो हिचकिचाहट क्यों? 31 दिसंबर तक इस्तीफे स्पीकर तक ना पहुंचे तो ये ड्रामा बंद करें। उन्होंने कहा कि पीडीएम में इत्तेफाक नहीं है, पीपल्स पार्टी में बाइख्तियार और हैं और दिखावे वाले और हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले आसिफ जरदारी करते हैं। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया, ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। और अगर 31 तारीख को, 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ। आपके पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं है, अगर इत्तेफाक नहीं है तो फिर ये तकल्लुफ काहे का? आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो बयानियां लेके चल रहे हैं उसमें जेयूआई मुकम्मल मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी का मैं पहले कह चुका हूं कि जो बाख्तियार हैं वो और हैं, जो दिखावे वाले हैं वो और हैं। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं। और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब कवानीन पर अपोजिशन के मुसवदे का हर हर्फ एनआरओ है। रिलीफ देने से इनकार पर पीडीएम को बनाया गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने तरामीम की सब एहतसाब ब्यूरो के मुल्जिम हैं। सलीम मांडवी वाला जाती मफाद के लिए ओहदे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपोजिशन ने, और ये वही तकरीबन 11 जमातें थी, इसमें से चीदा तो उन मुज़ाकरात का हिस्सा रही, उसके नतीजे में अपोजिशन ने हमसे सिर्फ एक डिमांड की। फैटफ के कवानीन के ऊपर कोई शायद नुक्ता इधर से उधर करने की तो चीज़ हो, फैक्चुअली तो उसके अंदर उनका कुछ इनपुट नहीं था। हाँ, एक डिमांड उसकी थी जो इस मसवदे की सूरत में हमें बिल मुशाफा पेश की गई, और वो ये है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब भी बार बार एनआरओ प्लस कह चुके हैं। अपोजिशन का ये कहना था कि आप हमें ये अमेंडमेंट्स नैब के अंदर करके देंगे तो हम आपको वोट भी देंगे, साथ भी चलेंगे। इसके बगैर मुमकिन नहीं है। जिन लोगों ने ये तरामीम ड्राफ्ट की वो तमाम नैब के मुल्ज़मान हैं। आप अपने पब्लिक ऑफिस को इसके दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पीडीएम के इस्तीफों का मामला है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबते हुए हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर बज़िद दिखाई देती है, जबकि सरबराह यूएफए ने मामला पीडीएम के सरबराही इजलास में रखने पर जोर दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा इखलाक बाजवा। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम के बड़ों के अहम राब्ते।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अहम टेलीफोन। आसिफ जरदारी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। साबिक सदर मुमलिकत ने दो टोक मौकफ अपनाया कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफे न दिए जाएं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट के हक में भी नहीं। PDM मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज़ायद निशस्तें हासिल कर सकती है। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जरदारी के मौकफ से इख्तलाफ किया। नवाज शरीफ का कहना है कि PDM इस्तीफे दे दे तो सेनेट इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि इस मामले को PDM के सरबराही इजलास में हल करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मुताबिक पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुत्तफिक है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी से उनकी सेहत बारे भी दरियाफ्त किया।